मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जेनेटिक्स। टॉपिक इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो व्हाट इज जेनेटिक्स? व्हेन वी डिफाइन जेनेटिक्स, and genetics is the study of heredity. Okay. Now, what is heredity? The topic itself. What is heredity? Heredity is equivalent to similarity. Okay. What is similarity? So, heredity is the transformation of genetical characters from parents to offspring. Parents to offspring. Okay. Heredity is a transformation of genetical characters from parents to offspring. So, in the term, it arises that what is genetical character? Genetical character क्या है? तो genetical characters are those, okay, that is similar in both parents and offspring. Okay. Hello. Good evening to everyone. आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जेनेटिक्स. The main topic is heredity and evolution. Okay. Now, before coming to the topic, हमें क्लियर करते हैं कि reproduction क्या है? Reproduction is the formation of offsprings by the parents. Okay. Now, reproduction के बाद जब offspring grows, okay, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स हैं. Similar to parents. Okay. Offspring के अंदर similar characteristics है पेरेंट्स के अंदर. So what are the characteristics called? Okay. Now, before we will get clear about the definition of genetics. Genetics is the study of heredity. तो genetics क्या है? Genetics is the study of heredity. Okay. Now, what is heredity? Heredity is the transmission of similar characters, that is genetical characters from parents to offspring. Okay. Now, what is heredity? Heredity is the transmission of similar characters, or we can say genetical characters, from parents to offspring. Parents से offspring के पास जो characters transform होते हैं, ठीक है, the similar characters, this is called heredity. Okay. Now, characters transform होते हैं. So, who is the carrier of these characters? Okay. So, carrier. These carriers are called genes. Okay. Now we are about what is genetics. Genetics is the study of heredity. Now what is heredity? Heredity is the transmission of similar characters or genetical characters from the parents to offspring. Now what is genetic? Means the term arises genes. Carriers of heredity or the similar characters is called genes. Okay. Now, genes. What are genes?
of DNA and are part of chromosomes. Okay, genes are made up of DNA and are part of chromosomes. Genes किससे formed है? Formed of DNA. Okay, and they are parts of chromosomes. Chromosomes के part में वो they are present in the chromosomes. And moreover, आगे क्या जान सकते हैं? Genes are structural and functional unit of what? Heredity. Okay, now here the answer is chromosomes. So what are chromosomes and how much chromosomes are present in, how many chromosomes are present in humans? Okay, now, chromosomes. We know there are 23 pairs of chromosomes in what? In human beings. Okay. Out of these 23 chromosomes, 22 are homologs. Okay. So, out of these 23 pairs of chromosomes, 22 are homologs. Homo means, from its term, homo means similar. Okay. And these chromosomes are what? They are similar and are known as allosomes. Okay. They are known as allosomes. Now, the rest one pair, the remaining one pair. Okay. For female, first we will select one pair. The one pair is called sex chromosome. Okay. Or homozygous. Homozygous. Then now let's convert chromosomes. Okay. Chromosomes are proteins. Autosomes, allosomes. Okay. Autosomes are similar chromosomes. Humans have total 23 pairs of chromosomes, out of which 22 are autosomes. But allosomes are what? They are sex-linked chromosomes. Sex-linked chromosomes. Okay. They are in female. They are X and X. In male, they are X and Y. Okay. Allosomes are what? They are only one pair out of 23 pairs, only one pair. They are sex-linked chromosomes. They are responsible for determination of sex. Means either the offspring is male or female. Okay. Now, another term is there. Another term is there, that is
Now, another thing is alleles. What are alleles? Alleles are variants of genes. Alleles are variants of genes. Those are responsible in the transformation of what? Transformation of the characters. They are responsible for the traits. Okay. Responsible for transmission of traits such as eye color, hair color. Okay. Now they are present in, it is chromosome. In a locus there is gene. Locus मतलब एक पॉइंट पर जीन प्रेजेंट है. ओके. और ये जो एलील्स हैं, एलील्स दे आर प्रेजेंट ऑन अ स्पेसिफिक DNA. Okay, specific DNA that is from which the gene is constructed. Okay. Now after all this concept, ये सभी कॉन्सेप्ट के बाद जैसे कि जीन हो गया, क्रोमोसोम्स हो गया, एलील्स हो गया, इन सब के बाद एक टॉपिक आता है कि जेनेटिक्स आया कहाँ से, किसने इन्वेंट किया जेनेटिक्स. ओके. सो फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स रॉजर जॉन्स Mendel. He was an Austrian monk. He was even a mathematician. Okay, but he studied about genetics. और उन्होंने कौन सा प्लांट चूज किया? पी प्लांट. पी प्लांट में हमें डिफरेंट वेरिएंट्स मिलते हैं, ट्रेट्स, जिसके कारण जो मेंडल है उन्होंने पी प्लांट को चूज किया. और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या, बायोलॉजिकल नेम इज सम. Okay, Isum sativum. P always capital and S always small. Okay, it is Isum sativum, the genetical or the biological name of what? Pea plant. Pea plant में कुछ characters हैं जो दूसरे plants में नहीं मिलते. ठीक है, तो इसलिए जो मेंडल है उन्होंने pea plant select किया. अब वो आगे जो है उनकी जो दो प्रोसेस है, दो प्रोसेस के बाद उन्होंने जो लॉस निकाले हैं वो आज हम पढ़ेंगे. ठीक है. The main important topic in this chapter is George Mendel's what? Experiment and his laws. Now, before coming to the topic, we will discuss about what pea plant's characters for because of which Mendel chose this plant. Okay, Mendel ने क्यों इस प्लांट को चूज किया था और उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दूसरे प्लांट्स में नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और उससे आने से पहले हम ये जान लेंगे कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है. ठीक है ना. डोमिनेंट क्या है? जैसे कि एक क्या देंगे, एक पेड़ है. ठीक है, एक पेड़ है और एक प्लांट है. तो दूर से कौन सा रिफ्लेक्ट करता है? ऑलवेज अ ट्री. अ स्मॉल प्लांट इज नॉट रिफ्लेक्टेड फर्स्ट बिकॉज हम जब दूर से देखते तो हमें पेड़ ही दिखाई देगा पहले. ठीक है, तो डोमिनेंट का अर्थ है जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. ठीक है, एक जगह पे अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. दो कैरेक्टर्स होंगे बट ये अपने आप को पहले एक्सप्रेस करेगा. और ये जो रिसेसिव है, रिसेसिव अपने आप को क्या करेगा? सप्रेस करके रखेगा. मतलब वो बाहर नहीं आएगा, वो होगा पर वो बाहर नहीं आएगा. ओके, इट रिमेन्स सप्रेस्ड. सो इसी कारण डोमिनेंट ट्रेट्स जो है हमेशा उन्हें कैपिटल में एक्सप्रेस किया जाता है. ठीक है, उन्हें कैपिटल में सिंबलाइज किया जाता है. और जो रिसेसिव है उन्हें हम हमेशा स्मॉल में करते हैं. ठीक है, आगे हम जानेंगे कि ये दोनों कहाँ से आए, इनका जो मतलब
हमारा जो ट्रेड्स है उसमें उनका क्या काम है, ठीक है। लेट्स नाउ हम दो मार्जिन बनाएंगे, डोमिनेंट, रिसेसिव, यहाँ हम लिखेंगे कैरेक्टर्स, ओके, दीज आर कैरेक्टर्स। तो हम देखेंगे कि कैरेक्टर्स क्या है, उनमें से डोमिनेंट टाइप क्या है और रिसेसिव टाइप क्या है, ओके। नाउ कैरेक्टर्स, फर्स्ट इज प्लांट हाइट। प्लांट का हाइट क्या है, ठीक है। प्लांट के हाइट में कितने वेरिएशन मिल रहे हैं। फर्स्ट टॉल, टॉल फॉर व्हाट, डोमिनेंट, ओके। और ये होगा ड्वार्फ, अपोजिट नहीं, टॉल का शॉर्ट नहीं होगा और टॉल को ऑलवेज ड्वार्फ। नाउ सीड शेप, सीड शेप में हमें मिल जाएगा क्या, राउंड एंड wrinkled। सीड कलर, सीड कलर, सीड कलर में क्या मिल गया, आइदर ग्रीन और येलो। नाउ सीड कलर में क्या मिल गया, येलो, ग्रीन, ओके। नाउ पॉड शेप, पॉड शेप में क्या मिल गया, inflated and constricted। Now pod color, okay, pod color में भी ग्रीन और येलो। टू मोर कैरेक्टर्स राइट हियर, एक है हमारा फ्लावर position, okay, for dominant it is axial and here it is terminal, okay। Now flower color, purple and white। So these are the characters, ठीक है। प्लांट हाइट में होगा टॉल, ड्वार्फ, सीड शेप राउंड, wrinkled, सीड कलर येलो, ग्रीन, pod shape inflated, constricted, pod shape, pod color green, yellow, flower position axial, terminal, flower color purple and white, okay। So इन्होंने particularly तीन प्रतीक क्यों लिया था, ठीक है। There are three reasons। Plant have small what, life period, okay। It has small life period, first one। Second, flowers are bisexual, okay। Unisexual means single flower have both male and female parts, okay। But bisexual means two different, okay। Now third is what,
here cross pollination occurs. It even shows cross pollination. Self pollination is what? Same plant. Okay. Different flowers. Okay. And cross pollination means same, so different flower plants and different flowers. Okay. So these are the reasons why he chose tea plants. Now, अब हमें पता चल गया कि कैरेक्टर्स क्या थे, लुमिनेटर से डिफरेंट जो उन्होंने चूज किया था, कौन से प्लांट लेके किए थे, और ये जो पी प्लांट जो उन्होंने लिया है वो उन्होंने क्यों लिया है. अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो है उनका क्रॉस. देयर आर टू टाइप ऑफ क्रॉसेस. ओके. What are they? Okay. Two type of crosses. One is monohybrid, another is dihybrid. Cross for a single character. Okay. Both plant have single, means it is tall and another is dwarf. Only single character. It is mono. Mono means single. And dihybrid means two different characters in same plant. Okay. Di means two. Okay. Single character and two different character. अब हम जानते हैं बारी बारी पढ़ेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्या था, डाइहाइब्रिड क्या था, उनमें से क्या लॉ हमने जाना. ठीक है. सो अब हम इसे डिस्कस करेंगे. ओके. लेट्स स्टार्ट. First, now monohybrid cross. Monohybrid cross means the cross which is between two homozygous chromosome alleles. Okay. Now this is first allele, this is second. Okay. Now the cross between these both to find out two heterozygous character. Okay, one heterozygous character, it is called what? Monohybrid cross. Now we will understand it by the process. हम जानेंगे मोनोहैब्रिड क्रॉस क्या है, कैसे. ठीक है. तो हम देखते हैं मोनोहैब्रिड क्रॉस. फर्स्ट क्या होंगे? पेरेंट्स. सिंगल कैरेक्टर लेना है. ठीक है. विल टेक टॉल एंड dwarf. ओके. उसके बाद गैमेट्स. गैमेट्स में क्या आया? यहाँ से एक, यहाँ से एक. ठीक है. फिर आएगा F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में क्या होता है? गैमेट्स मार्जिन to form what? Heterozygous alleles. Okay. Two different. So hetero. Homo means similar. Hetero means different. Homozygous alleles merge up from the heterozygous allele. Here in F1 generation, we will cross it, or it is the process is called selfing. Okay. Selfing. So हम इसे क्या करेंगे? क्रॉस करवाएंगे विद सिमिलर प्लांट. ओके. सिमिलर कैरेक्टर के प्लांट से हम इसे ये करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे. तो फिर हमें क्या मिलेगा? देन इन F2 जनरेशन वी हैव टू मेक अ पनेट स्क्वायर. नाउ व्हाट इज पनेट स्क्वायर? Pannett square. So the square which is used to find a genotypic character for a plant is called Pannett square. Means अब हमें मिल गया टी टी
फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप है इसका आउटर कर्व जो हमें दिखता है वो, बट जीनोटाइप के आफ्टर क्रॉस जो हमें नहीं दिख रहा, मतलब एक रिसेसिव है और डोमिनेंट है, तो दोनों का जो कैरेक्टर मर्ज अप है, जीन्स मर्ज अप है, उसे हम बोलेंगे जीनोटाइप कैरेक्टर. जीनो फ्रॉम हिज very starting it's known as geno means gene. Okay, now t t दोनों ठीक है, ये दोनों जीनोटाइपिक है, जीनोटाइपिक है, ये फेनोटाइपिक है, बट ये जीनोटाइपिक है. ठीक है, सो इन दोनों का जो क्रॉस हुआ उसे हम पेनेट स्क्वायर में निकालेंगे. ठीक है, ये now t t one with this, one with this, one with this, one with sorry, one with this and one with this. हमें हमारा 4 कैरेक्टर मिल गया. हाँ, F2 जनरेशन करके हम यहाँ पे F2 जनरेशन में क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं. ठीक है, बॉक्स बनाएंगे सिंपली. यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट कैरेक्टर, सेकेंड कैरेक्टर. ओके, ये हमारा टॉल 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 बॉक्स, ये नाउ ये सिमिलर है, डोमिनेंट, ये रिसेसिव है, बट दे बोथ आर व्हाट, दे बोथ आर होमोजाइगस. ओके, ये दोनों होमोजाइगस एलील है, बट ये दोनों हेटेरोजाइगस एलील है. यहाँ पे एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरा अपने आप को सप्रेस करेगा. ठीक है, सो यहाँ पे दो लॉज बने. हम लॉज के माध्यम से जानेंगे कि रेशियो इसका क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा. हम लॉज पहले जानेंगे, फिर हम फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक कैरेक्टर के बारे में जानेंगे कि इसमें से फिनोटाइपिक कौन है, जीनोटाइपिक कौन है, कितना F1 जनरेशन में F2 जनरेशन में क्या निकला, वो हम सब जानेंगे. ठीक है, पहले हम जानेंगे लॉ. व्हाट इज द लॉ? सो फर्स्ट, the very first law is law of dominance. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि अगर एक हेटेरोजाइगस एलील है हमारे पास, ठीक है, तो the dominant one will express itself, but the recessive one will remain suppressed. Okay, so what is the law? Out of two different heterozygous allele, the dominant one will express itself, but the recessive one will remain suppressed. That is the law of dominance. Okay, so when we write about the character, we will write about the law that during inheritance, okay, during inheritance, the law states that during inheritance, the one among the pair will express itself and the other remains suppressed. The one which expresses itself is called what? It's called dominant, and the other which remains suppressed is called what? Recessive. So we will write that according to the law, according to the law of dominance, the out of two different allele, one expresses itself and other remains suppressed. The one that expresses itself is called what?
dominant and the one that remains suppressed is called recessive. ऐसा समझ, ये लॉ कहता है कि जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट है और जो नहीं एक्सप्रेस कर सकता मींस दैट रिमेन सप्रेस्ड, मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही नहीं, इट इज कॉल्ड रिसेसिव. ओके, नाउ द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. Law of segregation or we can say segregation. Okay, so ये हमें बस एक्सप्लेन करता है कि out of two alleles from each parent, okay, they separate during what? They separate during gamete formation, okay, and combines with two different alleles, okay, combines with two different alleles, one coming from each parent. इसका मतलब क्या हुआ? The law states that each trait has two alleles, okay, each trait मतलब एक कैरेक्टर दो allele, allele 1, allele 2, दो allele कैरी करता है, okay, and they separate. गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, allele 1 क्या होता है, let it be for female and for male, allele 1 B, B1, B2, ठीक है. तो इसमें क्या होगा कि फीमेल और मेल के पास दो मतलब एक ट्रेट का दो allele हुआ, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ ना, A1 B1 के पास आ गया, ठीक है, A2 B2 के पास आ गया, मतलब दो allele है, एक ट्रेट में दो allele है, फीमेल का एक, फीमेल के पास भी दो है, मेल के पास भी दो है, ठीक है. और वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, वो क्रॉसओवर हो जाते हैं, ठीक है, दे मर्ज, ओके, एंड व्हाइल मर्जिंग अप दे पेयर टू डिफरेंट alleles कमिंग फ्रॉम अनदर पेरेंट, मतलब एक पेरेंट का एक allele और दूसरे पेरेंट का दूसरा allele, मतलब an offspring gets two alleles, okay, one from male means one from his father and one from female, that is one from his mother. So when we write about the definition, we say that the law states that each trait has two alleles that separates during the formation of gametes. During fertilization, one allele from each parent combines, okay, one each traits have two alleles, okay, and they separates, okay, and they get separate during formation of gametes. During formation of gametes, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, दो एलील सेपरेट हो जाते हैं, बट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन they merge, that is one from father and one from mother, okay. These are the two different
laws of the got from the monohybrid class. Now, what is phenotypic and genotypic? Phenotypic ratio and genotypic ratio. देखो पहले हमें दिख रहा है ये जो F जनरेशन है, यहाँ पे देखते हैं टी यहाँ पे जो है, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या पढ़ा कि जब दो कैरेक्टर्स दो एलील्स जब साथ में है तो वो अपने जो फिजिकल कैरेक्टर जो मुझे बता रही हूँ मैं, जो फिनोटाइपिक है, जब हम देख रहे हैं फिजिकल कैरेक्टर्स, तो डोमिनेंट अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। मतलब ये जो टी है, मतलब कैपिटल टी, टॉल अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ड्वार्फ उसके साथ होगा, द कैरेक्टर विल बी विथ द टॉल, ओके, बट वो सप्रेस्ड रहेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। सो व्हेन वी लुक फॉर द फिजिकल कैरेक्टर्स TT, where there is capital T, it will be dominant, and the small t, both small t, will be only the recessive. Okay, so the phenotypic ratio will be 3:1. Okay, so in a free generation, for phenotypic ratio, the outer appearance phenotypic ratio we got T means 3 tall and 1 dwarf. But the genotypic ratio, okay, genotypic ratio means homozygosity and heterozygosity. Okay, allele has 2 heterozygous allele and 2 homozygous allele. Okay, but for tall there is 1, dwarf there is 1. 1 pure means this homozygous, it is pure, 2 pure and 2 impure, but we will write it separately. So TT means 1 tall, 1. 2 heterozygous tall. Okay, they are, it is homozygous tall, it is heterozygous tall. 2 heterozygous tall, different characters, and 1 homozygous dwarf. Okay, genotypic ratio is means ये क्या शो करता है हमें, डिफरेंट कैरेक्टर्स। ओके, मतलब इसका एक हो, ये दोनों सेम है और ये, ठीक है, 1:2:1। अब समझ में कहाँ से आया, ठीक है, phenotypic ratio और genotypic ratio। ओके, तो इट वाज ऑल अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इनका जो इन्होंने कैसे पेरेंट के बाद जो गैमेट्स आया, फिर एफ जनरेशन में सेल्फिंग हुआ, फिर सेल्फिंग के बाद पनेट स्क्वायर से हमने क्या निकाला, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, फिजिकल अपीयरेंस, मतलब वो टॉल ही दिखेगा उसके पास, मतलब जैसे हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस से जाना, क्या जाना कि अगर कोई भी दो एलील साथ में है तो क्या होगा, एक टॉल और एक ड्वार्फ है, दोनों मर्ज हो गए, ठीक है, हेटेरोजाइगस हो गए, तो फिर क्या होगा, एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और दूसरा सप्रेस रहेगा। तो एक कैरेक्टर ने एक्सप्रेस किया जो डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट कौन है, टी है, तो हमारा जो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, ये जो टॉल है वो अलग एक अपने कैरेक्टर शो करेगा, ड्वार्फ अपना कैरेक्टर शो करेगा जीनोटाइपिकली, और ये जो हेटेरोजाइगस एलील है, हेटेरोजाइगस टॉल है, वो अपना कैरेक्टर शो करेगा। सो 1:2:1। अब हम जाएंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। ओके, लेट्स बिगिन विद डायहाइब्रिड क्रॉस। सो ये हमने लिया था टॉल और ड्वार्फ मींस प्लांट हाइट के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे डायहाइब्रिड। Now what is dihybrid cross? Dihybrid cross means two different characters, means cross between two different characters। मतलब एक प्लांट, सॉरी अगर हम लेंगे सीड के लिए, ठीक है, सीड भी था ना हमारा जो ट्रेड था उसमें से सीड भी था, तो सीड में क्या होता है, सीड का एक कलर भी होता है और उसका शेप भी होता है। तो हम सीड कलर लेंगे और सीड शेप, सीड में 2 वेरिएंट होता है, ठीक है, तो हम दोनों वेरिएंट को मर्ज अप करके हम एक क्रॉस बनाते हैं। मतलब सीड कलर में क्या हो गया, राउंड येलो, ओके, एंड व्हाट, wrinkle ग्रीन। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमने वहां पे भी क्रॉस किया था,
जिसमें हमने टॉल लिखा था और ड्वार्फ भी स्मॉल टी लिखा था। ड्वार्फ तो हम डी भी लिख सकते हैं, पर हमने स्मॉल टी ही क्यों लिखा? बिकॉज द डोमिनेंट पॉइंट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, और हमारा जो स्टार्टिंग जो वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो वो लेटर हमेशा ओके इट विल डिपेंड ऑन द डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके, इसलिए जब हमने यहाँ पे राउंड येलो लिया तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई लिया फॉर रिसेसिव कैरेक्टर्स। ओके, हमने wrinkled ग्रीन नहीं लिया, हमने wrinkled ग्रीन ऐसे लिया है, स्मॉल आर स्मॉल ओ। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे हम सिंगल कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे टू डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ सेम थिंग। ओके, तो आया पहला हमारा क्या, पेरेंट्स। हमारे कैरेक्टर से हम लिख देते हैं, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। सो पहले आए हमारे पेरेंट्स। सो व्हाट आर द पेरेंट्स? पहले हमारे यहाँ पे क्या, राउंड येलो। ओके, फॉर विच वी टू आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। दो रील पेयर है ना, एक कैरेक्टर के लिए दो रील पेयर, ठीक है। और दूसरा है हमारा wrinkled green सो wrinkled green के लिए हमने लिया स्मॉल आर स्मॉल वाई। मोनोहेट्रोट्रोपिक में क्या था, जब हम गैमेट्स ले रहे थे तो इसमें से एक इसमें से एक, पर यहाँ पे जब हमारे पास दो कैरेक्टर्स है तो हम क्या करेंगे, आर वाई और यहाँ पे हम ले लेंगे आर वाई, ठीक है। ये हमारा हो गया गैमेट्स, गैमेट्स हो गया। अब इस स्टेज में क्या होगा, हमारा यहाँ से क्रॉस होगा गैमेट्स के बीच में जो क्रॉस होगा, ठीक है। सो F1 जनरेशन में क्या होगा, 1 2 1 2, ठीक है। इनमें क्या हुआ, फिर स्मॉल वाई, ठीक है। अब दूसरा आया यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। सो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम, ये जो हमारे F1 जनरेशन के हमारे जो गैमेट्स है, हम F2 जनरेशन में क्या कर रहे थे, सेल्फिंग कर रहे थे और पलेट स्क्वायर के साथ हम उसका जीनोटाइप निकाल रहे थे, ठीक है। उसका जो जीनोटाइप कह रहे थे वो निकाल रहे थे। तो इसमें जब हमारे पास ये कैरेक्टर्स है तो हम सेम कैरेक्टर्स के साथ सेल्फिंग करेंगे दूसरा, तो हम F2 जनरेशन के पास चलते हैं, ठीक है। For F2 generation, इसमें नहीं होगा, एक मिनट हम यहीं से करते हैं, ठीक है। पहले बनाते हैं फिर बॉक्स बनाएंगे। फर्स्ट 1 2 3 and 4, okay. The 4 boxes are visible now. 1 2 3 and 4, okay. Now हम अब यहाँ पे क्या करेंगे,
हम अब यहाँ पे अपने कैरेक्टर्स लिखेंगे, मतलब कि हमारे जो गैमेट्स में मिले हैं F1 जनरेशन में, हमारा जो सेल्फिंग होने वाला है अभी, तो हम लिखेंगे। पहला हमें क्या मिला था, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y. Now for here small r capital Y, then capital R and small y. These are the gametes. Okay. Now here for selfing we will take same characters RR, capital Y, small y, same, and here. Okay. Dominant. This is all merged. Okay. Here. This character selfing. We are doing selfing here. It is unit square. We are doing. So for first, we are doing RR like this. Capital R, capital Y. See, do it carefully. Okay. Now, capital R, small r, capital R, small r, y. Okay. Now, capital R, capital R, capital small r, small y. So like this, we will cross over. Okay. Y R. Now Y. Now R Y. Here R Y. Here Y. Small y, capital R, small r y, here capital R y, then small y, capital R y, then capital R. Okay. Now this is what about the F2 generation. अब हम इससे क्या जानेंगे, अब हमें फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक कैरेक्टर निकालना है. ठीक है, phenotypic and genotypic. So now we will know about phenotypic and genotypic. So let's start with parents. ठीक है, तो parents में हमारा क्या मिलता है, ये. ठीक है, RR Y और इनका wrinkle gray. ठीक है, तो अब हमें यहाँ से मिला gamete, यहाँ से मिला, यहाँ से क्रॉस ओवर करेंगे. ये हमारा क्या हो गया, gametes. ये हमारा हो गया F1 जनरेशन. R Y. ठीक है, अब हम इसे सेल्फिंग करना है. सो हमें कैरेक्टर्स कौन से मिलेंगे, कैपिटल R, कैपिटल Y, दूसरा स्मॉल r, कैपिटल Y, तीसरा क्या होगा, कैपिटल R, स्मॉल y, दूसरा. ठीक है, इसको क्रॉस, वी कैन चेक इट बाय क्रॉसिंग इट. ओके, सेल्फिंग के बाद क्रॉस हुआ हमारा, हमें हमारे गैमेट्स मिल गए. फिर अब हम फिक्स करेंगे. ठीक, 1 2 3 4 1 2 3 4
let's write limits. Capital R, capital Y, small r, capital Y. Okay, here capital R, small r, small r, small r. ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेल्फिंग कर रहे हैं, तो ओके ना अब हम क्रॉसिंग करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारा आउटकम क्या है। ठीक है ना, इन द फर्स्ट ओके ना, यहाँ में क्या मिल रहा है, स्मॉलर y, ओके, बस देखना है और इसे क्रॉस करना है। ठीक है, सो इट्स अवर पेरेंट्स घर। अब यहाँ पे फिनोटाइप और जेनेटिक रिलेशन में कैसे मालूम चलेगा। ठीक है, ये देखते हैं फिनोटाइप पे जेनेटिक, तो हमें ये पता है, क्या पता है कि हमारा जो बॉक्स है, हमें यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टर देखना है और क्या देखना है, हमारा हमारा जो टॉल है, वाफ है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा इसमें, हमारा पहले वाला जो था 3:1। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा फिनोटाइपिक कैरेक्टर। ओके, सी अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे हमें मिलेगा कैसे। ठीक है, देखो पहले यहाँ पे फर्स्ट 3 देखेंगे, 1, फिर यहाँ पे 2, फिर एक और होगा यहाँ पे 3। ये तीनों क्या है, डोमिनेंट है। सो दे विल बी, मतलब वो हमें रिप्रेजेंट क्या करेंगे, डोमिनेंट। सो फर्स्ट यहाँ पे लिख देंगे 3। अब रिसेसिव देखते हैं, 3 रिसेसिव कहाँ पे है, पहला 1, 2 और 3। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया रिसेसिव, यहाँ पे 3 ना, बाकी देखते हैं। ओके, ये जो हमारा 9 बाकी, ये हुआ 1, फिर यहाँ हो गया हमारा 2, ये हमारा 3। ठीक है, 3 हमारा 4। ठीक है, हमारा 5 और 6, 7, 8, ये हुआ 9। तो ये 9 क्या है, ये हमारा है हेटेरोजाइगस। तो हमारा रेशियो क्या निकला, 9:3:3:1। और एक कैरेक्टर है जो हमारा क्या हो गया, हमारा पूरा होमोजाइगस हो गया।
जो हमारा रिसेसिव है RRY, ठीक है, ये हमारा पूरा रिसेसिव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फेनोटाइप है। तो हम फेनोटाइप को दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हुआ हमारा जो मोनोहाइब्रिड में क्या निकला था 3:1 निकला था, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। द इजीएस्ट वे टू द शॉर्ट फॉर्म टू कैरी आउट जो निकालने किससे फेनोटाइप रेशियो 9 3 3 जा 9 3 1 जा 3 1 3 जा 3 and 1 1 जा। Here's the phenotypic ratio. It is the shortest form for the phenotypic ratio. But हम यहाँ से निकाल सकते हैं phenotypic ratio ऐसे कि हम मैंने आपको कैरेक्टर जो बताया कि यहाँ पे कौन सा phenotypic है और कौन सा genotypic है, ठीक है। अब genotypic में क्या होता है, हमारा जेनेटिकल कैरेक्टर देखना है तो हम सिमिलर कैरेक्टर्स ढूंढेंगे। कितने सिमिलर कैरेक्टर्स, ये तो हमारा एक है डिफरेंट, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट डोमिनेंट, ये हमारा कंप्लीट रिसेसिव, एक हो गया 1 और दूसरा 1 इन्हें निकाल दिया। फिर यहाँ पे जब हम देखेंगे ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, ये कितने हैं 2 और ये 1 ये 2, ठीक है, ये हो गया 2, ठीक है। फिर हम देखेंगे ये वाला है, एक है स्मॉल आर कैपिटल वाई ये, और फिर यहाँ पे ढूंढते हैं हम ये एक है 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। फिर हमारा आया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसे हम ढूंढेंगे तो ये रहा दूसरा, ठीक है, सेकेंड पेयर, यहाँ पे थर्ड पेयर भी है और यहाँ पे फोर्थ पेयर भी, मतलब ये कितने हुए, ये हो गए 4, ठीक है, तो हम लिख देंगे 4। तो ऐसे अगर हम इसमें ढूंढेंगे तो हमें कितने कैरेक्टर्स मिलेंगे 1:2 2:1:2 2:2 4:2 1:2 मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के डिफरेंट कैरेक्टर्स में फॉर्म मिलेंगे, ठीक है, जेनेटिकल कैरेक्टर में मिलेंगे। तो इसका रेशियो हो गया 1:2 2:1:2 2:2 4:2 1:1, ठीक है। इससे हम शॉर्ट फॉर्म में डिफरेंट करेंगे। हमें पता है कि मोनोहाइब्रिड का जो क्रॉस था, जो फेनोटाइपिक रेशियो कैसे निकाल रहे थे, जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकाल रहे थे ऐसे, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 1:2 1 फिर 2 फिर यहाँ पे 4:2 फिर 1:2:1, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म जेनेटिक कैरेक्टर का, ठीक है। पर अगर हमें कैरेक्टर जानने की कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे सिमिलरिटी निकाल देंगे, जितने सिमिलर होंगे उतने डिफरेंट, यू कैन चेक इन दिस, ओके। नाउ ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड जो डाइहाइब्रिड क्रॉस। पर यहाँ पे हमारा एक लॉ निकला, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में जानेंगे कि वो क्या है। Law of independent assortment। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हमें ये चीज़ पहले से क्लैरिफाइड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के द्वारा कि गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पे अलग हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मर्जर हो जाते हैं। पर अभी एक जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो क्या है, दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट the alleles of 2 more genes get separated into gametes independent of each other। मतलब फर्टिलाइजेशन टाइम में अलग हो गए, ठीक है, देन ये
पेरेंट का है, ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग के टाइम पे क्या होता है, वो मर्जर हो जाते हैं, ए बी B1 A2 B2 ऐसा हो जाता है। तो इंडिपेंडेंट असेसमेंट ये बोलता है कि जब अलग हो जाते हैं जीन्स, ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो है ये इस पर इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, मतलब इसके कैरेक्टर का इन्फ्लुएंस इस पर नहीं होगा। मतलब जैसे कि ब्लू और वाइट कलर अगर एक साथ है तो वो मर्जर हो जाएंगे, हो जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं। बट ये तो नहीं है, ये अलग अलग एक्सप्रेस होंगे, साथ में होंगे बट अलग अलग एक्सप्रेस करेंगे एक दूसरे को। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं दैट हाँ, it's a magnet, okay, north pole, south pole, okay. So when north pole, we know opposites attract but repel who, जो repel कौन करता है, जो सेम होता है। तो अगर हम नॉर्थ और नॉर्थ को साथ कर देंगे तो वो रिपेल हो जाएंगे। बट अगर हम यही जो पॉइंट है इस पर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जो A1 और B1 है, मतलब इसका एक जो जीन है दूसरा इसका है, तो ये दोनों एक दूसरे में इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। इसका कैरेक्टर इस पे हावी नहीं होगा, इसका कैरेक्टर इस पे हावी नहीं होगा, ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाट अबाउट द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो द इंडिपेंडेंट, thus in the definition states that the law of independent assortment states that the alleles of different genes are inherited independently within the organisms that reproduce sexually. Okay. Now, gamete formation is a part of what? Reproduction. Okay. So, law of independent assortment states that it states that the alleles of different genes, the alleles of different gene does not influence each other when they are placed together and inherited independently and are inherited independently within the organism and reproduce sexually. Okay, so एक दूसरे का इन्फ्लुएंस इन पर नहीं होगा, ये दोनों डिफरेंटली इनहेरिट होंगे। ओके, दो एलिमेंट्स। So this was all about law of independent assortment. The last topic is sexual determination. How sexual character is determined. So it is very easy. We know about chromosomes. Okay, sexual determination. अब हम देखेंगे सेक्सुअल डिटर्मिनेशन क्या है। फर्स्ट, क्रोमोसोम्स। We know in humans how much? 23 pair. For 23 pair, out of 23 pair, it is divided into 2 autosomes, that means similar, and allosomes, that is one pair, this different. Allosomes, it is different in character, as they are also known as sex-linked chromosomes. Sex-linked chromosomes. Now it is clear that chromosomes are 23 pairs, out of which 22 are autosomes and 1 pair is allosome. That is the 23rd pair is allosome. Now
two types of gender, that are female and male. Okay, those are parents. They are female and male. Now, the last pair for female is X and X. For male, it is Y and Y. Okay, for sex dimension, how? During gamete formation. Okay, X from female and Y from male. During fertilization, well, okay, during fertilization, X from female and Y from X. Female always give X because it has two same chromosomes, the same allometric chromosomes. Okay, but here it is X and Y. Okay, so probably let male gives Y chromosome. Okay, if female has X, always X. Okay, if male has Y, then the offspring gives what? Offspring is male. But when the female gamete is X and male is X, then the offspring is female. Okay, it's daughter, it's son. Okay, it's all about social determination. That for humans there are 23 pairs of chromosome, out of which one pair is allosome, that is sex-linked chromosome, that act for that is the male chromosome for sexual determination. During fertilization, when female gives X chromosome and male gives Y, if male gives Y, then the offspring will be son, and if both gives X chromosome, then the offspring will be daughter. Okay.